गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करना we have been teaching for we have been like I personally have been teaching for more than 9 years, and one thing that we consistently noticed was that when we start preparation in June, a year before examination, only those students who were already semi prepared are able to clear examination in the very first attempt. And that's why we realize that this preparation is not a 1 year preparation. When you seriously want to be prepared in your very first attempt, it has to be given slightly more time. If we start in June, there are many classes in the sense there are classes for GS, there are classes for optional, there are classes for CSAT, there are classes for essay, current affairs. कई दिन ऐसा आता है जहां 2 या 3 क्लासेस करनी पड़ जाती है बच्चों को, and they should not need to do that. Every day one class, in some phase a class of GS and a class of optional is what a student should maximum be doing. At other times he should be reading, he should be doing revisions, which was not possible when we start in June. And that is why a batch which will take almost 20-21 months, ensuring that in 2027, when you are going to write your preliminary examination, you've actually revised everything that is needed for the examination 2-3 times. मतलब पूरा सिलेबस कि यार प्रिलिम्स कैसे नहीं होगा, जो बच्चा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में अचीव करता है, you should be able to achieve in the very first attempt. ऐसे ही when you go to write mains examination, you should be like, हाँ यार सब तो कर लिया, I have written all the PYQs, I have written enough tests, I have notes for everything available, I have short notes for everything available, making sure that no matter what, कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में कैसा भी आए, अपन एग्जाम अच्छा करके आएंगे. तो some things which normal aspirants achieve in second or third attempt, we should be able to do it in the first attempt. That is why this batch. That is why we're starting this batch 6 or 7 months before the main batch. आप जून 2026 में आओगे, जब आप देखोगे आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बट दिल बी न लॉट ऑफ पैनिक, बिकॉज जीएस की भी क्लास करनी है, ऑप्शनल की भी करनी है, रिविजन कब करें, टेस्ट के लिए कब प्रिपेयर करें, एंड यू विल बी लाइक हमने तो सब कर लिया है. And that is why starting a bit early is better. So for those students who had scope, who had option of doing that, many of you may be working aspirants, many of you may be still in college. If you can spare 4 or 5 hours every day, we'll give you a plan, we'll give you a process in this program which will make sure that आप 2027 एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो. जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं वो तो मतलब एकदम परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो ही जाएंगे. But even if you're able to give 5 to 6 hours every day, there will be a system where you will be fully prepared for the examination. Okay, so today will be your first class that will be taken by Babu sir. Babu sir UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 बार और यूपीएससी एग्जामिनेशन इन जनरल 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं. सबसे पहले वो यूपीएससी सीएपीएफ दिया था उन्होंने वे बैक इन 2009. उसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 2030 में कुछ थी, मुझे रैंक एग्जैक्टली याद नहीं है. देन he had appeared for civil services examination interviews thrice and have qualified this examination thrice. He is also our expert in public administration. तो आपका पॉलिटी और गवर्नेंस वाला सेक्शन बाबू सर लेंगे. ओवर द नेक्स्ट 40 days or so he'll be taking your classes. तो मैं आपको briefly अभी बता देता हूं कि how the classes would go on, why we have planned these classes in a particular manner. देखो, for the first 5 months our focus will be on the core subjects. What do we call core subjects? Core subjects are polity, geography, history and economy. It is these subjects on which other areas of your preparation are built upon. Other than this, मैं एक और चीज जो करना चाहूंगा वो होगा CSAT. Before we reach May, these are the things that I would want you people to complete. Reason देखो, CSAT ना कई बार बच्चा क्या करता है, CSAT they do at the end. देखो
ये जो एप्टीट्यूड है, जो क्विकली यू आर एबल टू थिंक ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, quickly you are able to reason, quickly you are able to read a paragraph and take out the key components from it, that is not something that can be learned. That is something that has to be developed, and that requires a lot of practice. So if we do these classes, they say for batches which will start in June, we'll do these classes somewhere in November, December, January, February. They will be learning CSAT. Learning नहीं करना है, क्या करना है इसको ऐसा, we have to make it an integral part of our life. So we'll go through all the formulas and everything, but then over 1 year, before June, we should be able to complete it. Then for the next 1 year, June 2026 to May 2027, we should be practicing it. हर संडे को 15-20 क्वेश्चन उस पे प्रैक्टिस करो, हर रोज गिव half an hour to it, so that CSAT should not remain a problem for you. CSAT, like I would request, I would suggest even people from engineering background to prepare it properly. I've seen in the past, this 2023 examination mein, they had asked they had asked difficult mathematics questions. So many of our students who had mathematics optional, who were from IIT Roorkee, IIT Bombay, they were not able to qualify pre because of CSAT. Why? Because वो मैथ्स वाली प्रॉब्लम्स करते रह गए, and maths problems were difficult. It required a lot of calculation. What happened? They were not able to do it. The paper was more difficult than the CAT papers, and we don't prepare for. But comprehension, logical reasoning was easy. But these people, see, we are from IITs, we have mathematics background. We will ensure कि at least 25-30 questions which come from maths, वो तो हमारा 100% correct है. Forget logical reasoning comprehension, and they got stuck there. That is something that we should not be doing. What should we be prioritizing? सारा एरिया कवर होना चाहिए, और उसके लिए सबके लिए प्रैक्टिस करना है. अदरवाइज यू एंड अप वेस्टिंग एंटायर ईयर, 1 year ऑफ योर, लाइक देखो अपना वर्किंग एज ना अराउंड 40 years होता है, उसमें से 1 साल बर्बाद कर देना इज वेस्टिंग 2.5% ऑफ योर लाइफ. CSAT can do that to you, and that is why initially these are the areas that we want to focus upon. ये लगभग 5 महीने लेंगे, which will, but by April make sure, by end of April make sure कि यार 5 महीने, या फिर history may take slightly more time because we have modern India, we have ancient, we have medieval, we have culture. When I talk about history, I include all those dimensions. So modern India will take around 1 month or 25-30 days, and then ancient medieval culture may take another 1 month, 25-30 days. So it may take slightly more time, but in this period we want to be strong in this portion. You should be able to answer every PYQ of prelims and mains of these areas. ये हमें मई तक कंप्लीट करना है. एंड कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट अटेंडेड क्लासेस, नाउ आई हैव नोट्स. नो, एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन योर नोट्स, एनीवन वेक्स यू अप एट 3 AM in the morning, बताइए. यू शुड बी लाइक, हाँ आई नो इट, बिफोर यू गो इनटू एनीथिंग एल्स. बिकॉज इवन इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अराउंड 100 मार्क्स कहां से आएंगे? इसी में से आएंगे. there is science, environment, नहीं, avoid 100 marks, 16 around 64 marks, or 64 nahi, 64 questions. Out of 100 questions, 64 questions would be coming from this area. Around 15-16 questions from each of the topics would come. In mains examination, you will see a big portion is this area. Then from June, we'll jump on to areas which are main centric. जैसे यहाँ this is relevant for both pre and mains. History, geography, polity, economy. This is relevant for both pre and mains. This after May will focus on ethics, governance, society, social justice, disaster management, and internal security. ये जो मेंस वाले एरियाज होते हैं, आप पेपर 1 में आओगे, पेपर 1 में यू हैव इन योर सिलेबस यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. पेपर 2 में आओगे, यू हैव पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन जितना लेट करे उतना अच्छा है, बिकॉज it's more current affairs than, like, this is very static, but this portion is mostly current affairs. So the more we do it,
the more we should be, the later we do it, the better it would be. Then इसी period में essay we should be starting generally after completing this and completing ethics also. एक बार ये वाला कंटेंट हो जाता है तो essay में we do not have to worry about content because you will know what to write. The only thing that would be needed, that you'll need to learn will be how to write. Are we able to understand this? तो ऑर्डर ये फॉलो करेंगे पहले, एंड डोंट स्टार्ट रनिंग बिहाइंड दीज थिंग्स कि अभी पढ़ लेते मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, नहीं, यहाँ पे परफेक्ट बनो ना. देखो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Out of 10 lakh people who apply for the exam, 5 lakh people who appear in the exam, only 10,000 students clear preliminary examination. So even when you are very very good at it, you are amongst the 2% of the students who will be, क्योंकि अगर आप ये अच्छा कर लेते हो, आपका प्री पक्का हो गया है. You'll be among top 2% of the students. और जो बच्चे बहुत हाफिजाडली चल रहे होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं. आप ओआरएन में रह रहे हो, ओआरएन करोल बाग कहीं यहाँ पे रहोगे, I'll tell you this, 95% of the students here do not ever even clear preliminary examination. ये रियलिटी है. तो ना, just because everyone is doing something, let me start doing it, is not needed. You should have, like, and everyone who cleared this examination will have a different strategy. अब आप बोलोगे सर डिफरेंट स्ट्रैटेजी से कैसे सिलेक्शन हो रहा है? यार, वो ना अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट अच्छे से कर रहे हैं. बाकी सब लोग क्या करते हैं ना, दे कीप ऑन रनिंग बिहाइंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, दे कीप ऑन रनिंग बिहाइंड डिफरेंट मेथड्स रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रैटेजी. तो आप एक प्लान बनाइए. प्लान क्या कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट्स प्लस थोड़ा सीसैट बाय में कंप्लीट करना है. हिस्ट्री में इन मेंस एग्जामिनेशन वी गेट अराउंड 7 क्वेश्चंस. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वी गेट अराउंड 16 क्वेश्चंस. जीएस 1 में अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस हिस्ट्री मेंस में आते हैं. मेंस हिस्ट्री में आई एम रेडी. 2026 का मेंस का पेपर जब मैं देखूंगा, आई शुड बी लाइक, हाँ, आई कैन डू ऑल ऑफ इट. इनफैक्ट 2026 मेंस तक तो दिस पोर्शन वुड आल्सो बी डन. तो 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में व्हेन यू लुक एट द पेपर, यू शुड बी लाइक, I can qualify this exam only on the basis of this area. I'm in a position to qualify the exam. जब तक आप 2026 मेंस तक पहुंचो, you are writing 2027 मेंस, note it. But by 2026 मेंस, you should have also done these things and should have this feeling कि यार मेरा मेंस भी हो रखा है. आप बोलोगे सर जब 2026 तक मेंस हो सकता है हमारा, why are you preparing us for 2027? है ना? इशू क्या है? After the first 5-6 months, you'll also start your optional. यहाँ पे ऑप्शनल भी चालू होगा ना, ऑप्शनल होगा. एंड सिर्फ ना ये जान लेना कि इतना कंटेंट मुझे आता है इज नॉट गुड इनफ. वी शुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. अभी से हम फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे. एवरी वीक इनिशियली विल हैव स्मॉल टेस्ट्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, दोनों टेस्ट होंगे आपके. अभी I'll introduce you to, after the class you can meet Akram sir. Akram sir will also be sending his details in the group. He'll be your batch coordinator. वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे शेड्यूल के बारे में. हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पे हम शेड्यूल पोस्ट करते हैं, है ना. वहां पे अक्रम सर जनरली डज दिस पोस्टिंग. He'll also inform you about the schedule. He'll also inform you about the test syllabus. पहले वीक से हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे. छोटे टेस्ट लेंगे. जनरली व्हाट वी डू इज वी टेक अ 50 क्वेश्चन टेस्ट एंड अ 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टेस्ट. बट इनिशियली लेट्स नॉट मेक इट अ वेरी रिगरस थिंग. 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, 2 ही आंसर लिखते हैं, पर शुरू करेंगे. आंसर राइटिंग विल नॉट स्टार्ट लेटर. आंसर राइटिंग विल स्टार्ट व्हेन? नाउ. वी शुड स्टार्ट लर्निंग कि यार ऐसा इंट्रो होना चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए. लेट्स डू दिस. थोड़ा सा सिलेबस और कंप्लीट होता है, विल मूव ऑन टू द फेज ऑफ वेयर विल टेक अ 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड अ 10 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव टेस्ट. विल गो लाइक दिस एंड देन विल मूव ऑन टू 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड अ 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टेस्ट. दैट इज 2 घंटा और 3 घंटे का पूरा पेपर हम करना शुरू करेंगे. इन अ फेज्ड मैनर विल बी गोइंग. In classes, teachers would ensure that PYQs are being properly covered. Will make sure of that. But इस फेज में ना ज्यादा फोकस, बिकॉज दिस विल बी वेरी फैक्चुअल ऑल्सो. यहाँ पे ना बहुत फैक्चुअल चीजें नहीं होती है. Society is understanding, governance is understanding, IR is understanding, but this phase will be factual also. This phase will be something that you'll need to remember, recall a lot. Keep revising, keep revising, keep revising. आपको जो नोट्स मिल रहे हैं, आप जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो, revise them again and again, again and again. Make sure that you are actually ready for 2026 preliminary examination.
आप सब लोगों को किसके लिए 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहना है। यू विल राइट एग्जाम इन 27 बट दिस इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग, और हो जाएगा अगर आप ऑनेस्टली आप इफ यू कैन गिव 6 hours एवरी डे, 2-3 hours of classes, 2-3 hours of revision, that will be doable. बात समझ में आई है? इतना करोगे you will be in a position to clear pre, and if you after that you may need to give slightly more time because optional भी चल रहा होगा, but if you give 2 hours of classes, 1 hour of revision, 2 hour of classes for optional, 1 hour of revision, at least GS mains के लिए you will be ready by 2026 August. तो लगभग 2026 August तक we plan to wind up the entire syllabus. आपका prelims का भी, mains का भी, worst case में it may go till September. But in this period we want to wind up your entire syllabus. अब बोलोगे सर फिर why a 2-year program? A 2-year program because what we want to do is from September till December we want you to we want to take you through a phase of rigorous mains revision. यहां पे we'll make sure अब प्री की पढ़ाई नहीं करेंगे. कब? September to December 2026. अभी हम 2025 में है. अगस्त में 2026 मेंस हो चुका होगा, बट सितंबर टू दिसंबर में वी विल अगेन गो थ्रू व्हाट? कंप्लीट मेंस रिविजन. एवरी डे इन क्लास 3-4 आंसर्स लिखेंगे, या आप घर पे भी बैठ के लिखना 3-4 आंसर, रिवाइज करना. हर संडे को बड़ा टेस्ट होगा. These 4 months should be like everything that we need for mains, every current update that is needed is being done here. तो बाय दिस पीरियड, बाय सितंबर हमें क्या करना है? हमें अपना पूरा मेंस का तैयारी पूरा कर लेना है. यहां पे रिगरस रिवीजन करेंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन स्टूडेंट्स मिस. क्यों पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है? क्योंकि वो ना फाउंडेशन की क्लासेस तो कंप्लीट कर लेते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं? ये वाला फेज जहां पे एकदम सिलेबस का एक एक बुलेट पॉइंट कवर्ड है, एक एक पीवाईक्यू कवर्ड है, सबको लिख के रखा है, हर संडे को टेस्ट दे रहे हैं, ये वाला फेज वो कभी नहीं कर पाते. And for those students who have background, who have done some preparation in the past, they get an edge. वो पहली बार में select हो जाते हैं. Most of the students don't, even if they qualify pre, they are not able to qualify mains. You will see first attempt में select होने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं. क्यों? क्योंकि they are not able to go through this phase. We'll make sure that you people are going through this phase. जब September, October, November, December में rest of the students for 2027, when they are in their foundational preparation, you will be in advanced preparation. By end of December हमें मेंस का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, एसए का, जीएस का, हम वी शुड बी लाइक आता है. एंड बाय एंड ऑफ दिसंबर आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये तो रिवीजन कर रहे होंगे, बट ऑप्शनल को ज्यादा प्रायोरिटी पे फोकस कर रहे होंगे. जून से दिसंबर में हमारा ऑप्शनल भी कंप्लीट होना चाहिए. तो दिस विल बी आवर मेंस रिवीजन फेज, वेयर every day 3-4 आंसर्स, every day रिवीजन, every संडे टेस्ट. जो भी लूप होल्स है, सिलेबस का कोई भी बुलेट पॉइंट, कोई भी की पॉइंट अगर कवर्ड नहीं होगा इस पीरियड में, विल डू दैट. There should not be a single thing that should be left. At the end of December, we should be like मैं ही भगवान. पूछो क्या पूछो. सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में सब कर लिया मैंने मेंस के लिए. प्री में कुछ लूप होल्स रहे होंगे, कोई बात नहीं, अभी हम मेंस पे जाएंगे. देन January 2027 to March 2027, what will we go through? Prelims revision phase. यहां पे every day you will have a 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट. every day, हर रोज सुबह आप आओगे 8 बजे, क्या करोगे? 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट करोगे. उसका सिलेबस प्री डिटरमाइंड होगा, आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड हो चुका होगा. यू विल रिवाइज इट, यू विल डू दिस, एंड अगर क्लासेस होंगी दैट विल बी फॉर करंट अफेयर्स. अगस्त सितंबर तक अपन ने प्री का सिलेबस भी पूरा कर लिया है, उसके बाद भी तो करंट अपडेट्स हो रहे होंगे ना. तो क्लासेस, इफ विल हैव सम क्लासेस. अब देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फरवरी 2027 दैट वी कैन नॉट डू इन 2026. न्यूज वाला पार्ट तो यहीं पे होना पड़ेगा. तो we'll have some current affairs classes, but primarily what we'll be doing? We'll be doing revision of what we have already studied, and every day 50 questions will be solving. हर संडे को एक फुल ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा. मेकिंग श्योर दैट इतना प्रैक्टिस कर लिया है आपने, सिलेबस को इतनी बार रिवाइज कर. देयर शुड नॉट बी एनी रीजन फॉर यू टू
not be ready for May 2027 preliminary examination. है ना? आफ्टर May 2027, आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये जो अपना सितंबर टू दिसंबर वाला फेज है, ये फास्ट ट्रैक तरीके से दोबारा से करेंगे मेंस का रिवीजन. इनटू यहां पे वी डिड इट इन 4 months. In June, July 2027, we'll again do it in 2 months. You'll be like, sir, इतना मेंस प्रैक्टिस, इतना मेंस रिवीजन करना है. देखो, eventually 1000 students get selected. फाइनल सिलेक्शन 1000 बच्चों का होता है. Out of 10 lakh people who appear for the exam, 1000 get selected. And if I look at IAS, only the top 100 get into. In fact, जनरल कैटेगरी में 70 रैंक पे खत्म हो जाता है इसका पोजीशन. तो टॉप 100 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज. यू हैव टू बी इन टॉप 100. आउट ऑफ 10 लाख 100 में आना का मतलब है आउट ऑफ 10 लाख 10,000 इज 1%, 1000 इज 0.1%, 100 इज 0.01%. 10,000 बच्चों में से एक बच्चा आईएएस बनेगा. तो आपको वहां रहना है कि अगर 10,000 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें से मैं टॉप वाला बच्चा. एंड उसके लिए हाउ विल योर रैंक बी डिसाइडेड? योर रैंक विल बी डिसाइडेड बाय, ये क्या खुल गया? अच्छा, पॉलिटी. योर रैंक विल बी डिसाइडेड बाय योर मेंस प्रिपरेशन. एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रायोरिटाइजिंग मेंस. हम आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक वी आर सेइंग कि विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक यू विल हैव योर मेंटर्स एलोकेटेड. जैसे अभी अकरम सर विल बी योर बैच कोऑर्डिनेटर. अकरम सर, आपका कोई भी डाउट है कि सर ये क्लास कैसे है, कब है, क्यों है, अकरम सर विल हैंडल इट. अनीश सर, Anish Singh will be your mentor also. He'll be over the next 1.5 year guiding you. जहां भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, he'll be guiding you. हर वीक में एक बार I'll also take this session so that batch is going properly. There is no problem. So I'll be your super mentor. I'll be available to you every week. And from June 2026, a year before your preliminary examination, I'll also come regularly for taking your current affairs classes. करंट अफेयर्स क्लासेस आपकी इमीडिएटली चालू नहीं होंगी. करंट अफेयर्स क्लासेस व्हेन विल दे स्टार्ट? दे विल स्टार्ट फ्रॉम जून. अभी यू विल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. विल टीच यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स. डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ देम एंड एवरीथिंग. वो सब अभी से नहीं कर पाया. राइट? इतनी बात समझ में आई है? नाउ व्हाट शुड बी योर रफ शेड्यूल, रफ प्लान. अच्छा, एक और चीज है, प्लीज फॉलो द टेस्ट प्रॉपरली. थ्रू टेस्ट्स we will ensure that you are doing effective revision. How do we plan our test? We plan our test in this structure. And we repeat this cycle. और यहाँ पे हम आ जाते हैं quarterly test पे. Let me explain you what this is. You will have weekly test. Weekly test में what will be the syllabus? Whatever you have studied from Monday to Saturday. Then again next week में क्या syllabus रहेगा? Whatever you studied between Monday to Saturday. Then whatever you studied in between Monday to Saturday. ऐसे चलेगा 4 week. But after that we'll have a monthly test. Monthly test से पहले we'll also give you a day off or 2 days off. आपके बैच में वो viability है. So that you revise everything that you have done in the entire month. And that will be part of your test. Both objective test and subjective test. ऐसे ही weekly, monthly. Once 3 months are over, we'll have a क्वार्टरली टेस्ट. हेल्पिंग यू कि यार 3 दिन का ब्रेक लो, क्या करो, पिछले 3 महीने में जितना पढ़ा है वैसे तो यू रिवाइज्ड इट यूजिंग वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट. वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में आपने उसे रिवाइज किया होगा, बट क्वार्टरली टेस्ट में दोबारा से रिवाइज करो. ऐसे ही अराउंड मे यू विल हैव अ 6 मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट. पूरे 6 महीने में जितना पढ़ा है ना, सब आएगा टेस्ट में. आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि if a student is sincerely following it, if a student is sincerely following the program, we are making that student revise the program, cover the syllabus multiple times. Otherwise, whatever you study in the first class, अगर February के टेस्ट में वो नहीं आ रहा है ना, you will not focus on it and you will forget it. You will keep running behind new things. अरे ये नई किताब पढ़ लेते हैं, नया सोर्स पढ़ लेते हैं, rather than रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में एक रूल समझना कि having one source and revising it 10 times will increase your chances of selection more than having 10 source. आपने 10 किताबें पढ़ी हैं पर सबको एक एक बार पढ़ा है, या आपने एक किताब पढ़ी है उसको 10 बार पढ़ा है.
क्या ज्यादा चांस रहेगा, क्या इंश्योर करेगा आपका सिलेक्शन हो? वन बुक रिवाइज्ड 10 times, and that is what we focus upon. We'll make sure that you have comprehensive notes. There are some standard books that you may need to follow. जैसे पॉलिटी के लिए आई जनरली से लक्ष्मीकांत रखना अपने पास, बट उसके अलावा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मॉडर्न इंडिया के लिए एक मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम नहीं, स्पेक्ट्रम इज नॉट अ बुक, स्पेक्ट्रम इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट which will make you feel good. तो स्पेक्ट्रम में जो फैक्चुअल चीजें हैं जो वो तो विशाल सर वैसे भी क्लास में कराएंगे ही, जो एग्जाम के लिए चाहिए। स्टोरीज के लिए we need a book, and that is Bipin Chandra ka Modern India. Ancient medieval culture के लिए nothing, you will not need. For most other things you will not need anything. Economy हम क्लास में ही आपको पूरा कराएंगे। एंशिएंट मिडिवल कल्चर निखिल सर क्लास में ही, वो सारे बुक्स में जो भी काम की चीजें हैं सब आपके नोट्स में रहेंगे, है ना। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, बट फॉर पॉलिटी आई जनरली से लक्ष्मीकांत रख लेना साथ में। फॉर मॉडर्न इंडिया इसे एक मॉडर्न इंडिया की किताब आती है बाय बिपिन चंद्रा, वो भी साथ में रखिएगा, है ना। अभी यू आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी, वन बुक दैट यू विल नीड टू टेक इज लक्ष्मीकांत रख लीजिए। और क्योंकि यू विल हैव टाइम राइट नाउ, once a chapter on union and its territories is completed, once a chapter on preamble is completed, go through लक्ष्मीकांत also. उसके पीछे PYQs लिखे होते हैं, देखो PYQs आपको क्लास में भी प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, वो करना है। तो follow the schedule properly, we will make sure that you are done with your preparation like in the best possible manner. You complete your preparation in the best possible manner. कैसे? जब एक ही चीज को देखो, आपने हर रोज घर जाके रिवाइज करोगे, फर्स्ट रिवीजन, वीकेंड टेस्ट पे रिवाइज करोगे, सेकंड रिवीजन, मंथली टेस्ट पे रिवाइज करोगे, थर्ड रिवीजन, क्वार्टरली टेस्ट पे रिवाइज करोगे, क्वार्टरली टेस्ट भी आएगा 3 महीने बाद सेम सिलेबस का, फोर्थ रिवीजन, 6 मंथली टेस्ट पे रिवाइज करोगे, फिफ्थ रिवीजन। तो इफ यू ऑनेस्टली फॉलो द शेड्यूल, बाय मे we'll make sure that history, geography, polity, economy and CSAT ये आप 5 बार रिवाइज कर चुके हो। अगर ऐसा कर लेते हो सिंसियरली, ऑनेस्टली, आप 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। फॉरगेट 2027, आई एम सेइंग यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपका साइंस, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल मैपिंग नहीं होगा। अदर देन दिस व्हाट डू वी स्टडी? साइंस, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल मैपिंग। बट वो पढ़े बिना भी यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज व्हाई फॉलो द शेड्यूल प्रॉपरली। अगर आपको कुछ फीडबैक चाहिए ना कि और क्या, स्पीक टू आवर स्टूडेंट्स, डोंट स्पीक टू स्टूडेंट्स आउटसाइड। मैं रीजन बता रहा हूं, बाहर का जीएस फाउंडेशन कोर्स ना इतना रिग्रेस नहीं होता, तो बाहर बच्चा आपको क्या फीडबैक देगा, यार जीएस फाउंडेशन ना इनफ नहीं रहेगा, कुछ ये भी कर, वो भी कर, ऐसा भी कर, वैसा भी कर। क्यों? क्योंकि उसने तो कभी लेवल अप में पढ़ा ही नहीं है ना, उसे लेवल अप का तरीका पता ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू गेट फीडबैक फ्रॉम होम, लेवल अप आईएएस स्टूडेंट्स। यार और भी कुछ करना पड़ेगा क्या? वो बोलेगा भाई ये कर ले, बहुत होगा। ये पूरा कंप्लीट करना बिकम्स अ चैलेंज, बिकम्स एन इश्यू। आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, फॉर स्टूडेंट्स हु स्टार्ट इन अप्रैल में जून, उस टाइम थोड़ा सा इश्यू रहता है, स्पेशली जून के बाद जो बैचेस चालू होते हैं ना, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी किसी दिन 3 क्लास होती है, एक जीएस की, एक सीसैट की, एक ऑप्शनल की। अब यार 7 घंटे क्लास करोगे एक दिन में, कब रिवाइज कब करोगे, पढ़ोगे कब, है ना। वो देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर बैचेस व्हिच स्टार्टेड इन जून और जुलाई एंड अगस्त, एंड वो 2026 मेंस को टारगेट कर रहे हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर सिलेबस पूरा करके देना है, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। एंड दैट इज व्हाई स्टार्टिंग, अभी इशू क्या है ना, अभी बच्चे जनरली 1 साल पहले आते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपको लग रहा होगा कि बच्चे कम है, ऐसा है वैसा, बट यू विल बी द बेस्ट प्रिपेयर्ड पीपल। यू विल बी लाइक, आपका कंपटीशन जून से स्टार्ट होगा, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट बिफोर दैट। जून में बच्चा बेसिक्स पढ़ रहा होगा, एंड यू विल बी लाइक, आई एम इन अ पोजीशन ऑलरेडी टू क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगस्त तक मेंस भी क्लियर करने का पोजीशन होना चाहिए। आपको मेंस का क्वेश्चन पेपर देख के लगे कि डुएबल है, फिर वी विल अगेन मेक यू गो थ्रू रिग्रेस मेंस, रिग्रेस प्री। मेंस वाले फेज में आंसर राइटिंग एवरी डे, टेस्ट एवरी संडे फॉर मेंस। रिग्रेस प्री वाले प्रिपरेशन फेज में 50 क्वेश्चन का टेस्ट एवरी डे एंड 100 क्वेश्चन का टेस्ट एवरी संडे।
फिर आफ्टर दैट फिर जो हमने 4 महीने में यहाँ करेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, विल डू इट अगेन बिटवीन प्री एंड मेंस, अगेन अ फेज ऑफ रिविजन, ये अपन करने वाले हैं. ओके, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स बिफोर आई आस्क सर बाबू सर टू कम इन एंड स्टार्ट क्लासेस? साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इन इसी बिफोर अगस्त विल बी कंप्लीटिंग, है ना. साइंस टेक एनवायरमेंट, आई एम योर साइंस टेक एंड एनवायरमेंट टीचर, आई विल बी टेकिंग इट एंड आई बी कवरिंग इट बिफोर दिस. मैंने इसे अलग से, आई हैवंट मेंशन्ड इट बिकॉज़ आई विल कवर इट इन करंट अफेयर्स. तो वो जीएस की क्लास के शेड्यूल में आई हैव नॉट मेंशन्ड इट. ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट्स? Oh, UPSC format paper. In fact, last Sunday only we have shifted to जो generally क्या होता है ना, A4 sheets are not what you get in UPSC. उनका format is slightly different. And when we do this, when we practice on A4 sheet, and in the examination, in the real examination, we get a much wider sheet. It becomes a bit of problem. तो this week only we became the first institution जिसने क्या शुरू कर दिया है, उसके जो वीकली टेस्ट होंगे दैट विल बी ऑन द यूपीएससी फॉर्मेट पेपर, विच विल बी उसका लेंथ विल बी शॉर्टर देन यूपीएससी पेपर बट विड्थ विल बी वाइडर, एंड दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर? आपको पूरी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैं आपसे हर वीक तो मिलूंगा ही, एंड आई विल कम टू यू एंड आई विल स्पीक अबाउट आंसर राइटिंग कैसे करनी है, शेड्यूल कैसे बनाना है, इन सब पे मैं आपको मेंटरिंग सेशन देता रहूंगा. और इसके अलावा भी जब कोई मेंटरिंग सेशन नहीं भी रहेगा, एवरी वीक वंस आई विल कम एंड मीट यू, आई विल अंडरस्टैंड आपके चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग एंड विल बी गाइडिंग यू. तो आई विल बी योर सुपर मेंटर. एक आपके अनीश सर मेंटर रहेंगे, बट मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा थ्रू आउट.